Good afternoon, all of you. My voice is audible. Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, in last class, we discussed cross drainage work, and that is the last chapter, last model of our syllabus. So, syllabus is covered. So, from today, we discuss some objective question and also subjective question. So, start from first chapter, that is the types of water requirement for the crops, and also another chapter, also some question from hydrology, that portion is also discussed. So जो भी टाइम अभी बचा है बिफोर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तब तक हम लोगों का क्वेश्चन डिस्कशन की ही क्लासें चलेगी, ठीक है। सो आई एम शेयर द क्वेश्चन थ्रू द स्क्रीन। सो तुम लोग स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हो। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। Yes, ma'am. Okay, so let's see first question. First question is related to types of irrigation. That is first model of our syllabus. So question is, which of the following method of applying water may be used on rolling land? So which method is most suitable for irrigation for water supplying on rolling land? First option is water flooding, second is check flooding, third is furrow flooding, and last D option is free flooding. Which option is correct? D. Free flooding. Free flooding. Free flooding. Free flooding. Yes, ma'am. Free flooding. Okay, why not water flooding or check flooding? रोलिंग लैंड है मैम, तो फ्री फ्लडिंग इजीली हो जाएगा मैम। इजीली हो जाएगा, लेकिन वाटर का वेस्टेज होगा या नहीं? फ्री फ्लडिंग हर एक टाइप में इजीली ही हो जाएगा, बट हमें इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। सो जस्ट थिंक ऑल पॉइंट्स एंड गिव आंसर। मैम फ्लडिंग नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर और चेक में डिफिकल्ट हो जाएगा बॉर्डर बनाना और चेक बनाना। ओके, एनी अदर कंक्लूजन? और भी कुछ रीजन है, कोई दे सकते हो? मैम फ्री फ्लडिंग ही लग रहा है। ओके, सो फ्री फ्लडिंग इज करेक्ट आंसर, ठीक है। रोलिंग लैंड क्या होता है? रोलिंग लैंड ऊपर नीचे जो लैंड सरफेस होता है मैम। ऊपर नीचे सरफेस नहीं होता है, स्लोप है जो बहुत ही जेंटल होता है। स्लोप है जेंटल, मतलब ऊपर नीचे ऐसा नहीं कि कुछ कुछ डिस्टेंस पे ही ऊपर नीचे होगा। स्लोप है जो बहुत ही दूर तक एक जैसा ही है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारा क्या है, जेंटल स्लोप है। दैट टाइप ऑफ लैंड इज रोलिंग लैंड। फ्लैट नहीं है, had some slope, but that slope has gentle slope and continuous for long distance. ठीक है, so free flooding is correct. Second question, see the second question is also from water requirement and properties of
characteristic of irrigation water. So question is, if the electrical conductivity of water is in between 250 to 750 micro mho per centimeter at 20 degrees centigrade, then what is it classified as? Low salinity, medium salinity, high salinity, or very high salinity? So some range. medium. Yes, which one? क्या होगा? Medium salinity water. मैम इसको तो Medium कैलकुलेट salinity. करना पड़ेगा मैम। कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, जब there is टेबल a बनाया range तो होगा। for different types of salinity, there is a range of conductivity is given. ओ मैम मीडियम मैम, सॉरी मैम, मैम मीडियम मीडियम salinity होगा। So होगा। what is for low salinity water? What is the range of EC for low salinity? क्या 100 रेंज to होता है? 250 मैम। 100 to 250 and for medium? मैम मीडियम के लिए 250 to 750 And for high? 750 to 2250. Okay, so 2050 मैम, 2250। as per given data in question, the salinity is in medium. Okay, so see the third question is sodium absorption ratio is defined as, direct formula is given in correct formula is given in option. So which one is correct? A, B, C, D. ACR का क्या होता है फॉर्मूला? मैम शायद सी या डी होगा, दोनों में से एक होगा कोई। क्या होगा? सी होगा मैम। ACR क्या होता है? नहीं, सी होगा। सी होगा। ACR क्या होता है? सोडियम ऑब्जॉर्प्शन रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? हम सोडियम आयन को पता कर मतलब सोडियम पता आयरन को पता करने के लिए मैम। सोडियम आयन को इंडिकेट करता है। सोडियम आयन कंसंट्रेशन, दैट इज अल्कालाइन कंसंट्रेशन को मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? ACR कैलकुलेट करते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन नोट्स ऑल्सो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ ACR फॉर हाई सोडियम वाटर। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर हाई सोडियम वाटर? मैम सी 18 to 26 18 to 26. 26. Which one is correct? मैम सी ऑप्शन। So what is the ratio, ACR ratio for low water? मैम 0 to 10 के लिए क्या होता है? 0 to 10, 10 and for the C that is high and 26 to 34 that is very high. Okay, so next question is question number 5. So question number 5 is the optimum depth of core watering for rice is how much? So what is core watering? Core watering of rice is given. Option A is 135, 165, 198, 205, 215, 15. So what is core watering? Core watering क्या होता है? मैम जो वाटर मैम हम लोग क्रॉपिंग जब हो जाता है, मतलब फ्यू सेंटीमीटर क्रॉप निकल जाता है, उसके बाद जब क्रॉप पूरा एडल्ट हो जाता है तब तक जो वाटरिंग करते हैं मैम, तो उसको कोर वाटरिंग बोलते हैं।
Okay, so what is the value for rice? Core watering depth for rice. मैम 120 होता है मैम, बट ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है। कोई और बताओ, कोई ऑप्शन करेक्ट है? ये तो 120 होता है, लेकिन इसमें तो दिया ही नहीं है। So ऑप्शन तो 190 मान लेंगे। तुम्हारी आवाज 190 है? 190 है मैम। 190 है। 190 Which one is correct? Optimum depth of core watering for rice crop. So core watering का depth कितना होगा राइस क्रॉप के लिए? टोटल डेप्थ कितना होता है? टोटल डेल्टा का वैल्यू कितना होता है? डेल्टा फॉर राइस 120 होता है। 120 मैम। 120 क्या यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैम। 120 सेंटीमीटर, दैट इज थ्रू आउट द नरिशमेंट पीरियड राइस हैज 120 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायर्ड। लेकिन ये हमारा क्या है, सिर्फ कोर वाटरिंग पूछ रहा ना, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस क्रॉप। सो जब हमारा फ्यू सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है राइस, उस समय कितना वाटर चाहिए? सो दैट इज नॉट 120 सेंटीमीटर, है ना। सो कोर वाटरिंग के लिए, राइस के लिए कोर वाटरिंग का जो वैल्यू है दैट इज 19 सेंटीमीटर. So is there available any option 19 centimeter? So 19 centimeter is 190 mm. ठीक है, 190 mm. So that is correct. Correct option is C. समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ये पेपर में भी था मैम क्वेश्चन 190। So next question is question number 6. So question is, irrigation water having the concentration of sodium, calcium and magnesium as 23 and 1 milli equivalent per liter. So what will be classified as low sodium water, medium sodium water, high sodium water or very high sodium water? So calculate by the formula. फर्स्ट कैलकुलेट ACR वैल्यू, उसके बेसिस पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? लो सोडियम, मीडियम सोडियम और हाई सोडियम और वेरी हाई सोडियम वाटर. कैलकुलेट द वैल्यू, पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला. कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2. 14.14 आ रहा मैम, मीडियम सोडियम। Medium sodium. Is any other answer? low sodium water. कितना आ रहा है ACR का वैल्यू? 14.14। 14.14. सबका ये वैल्यू आ रहा है 14.14. यस मैम। Okay, so that means this is range of medium sodium water, correct? Next question is, the relation between duty in hectare per cumex, depth of water delta in meter and the base period B in days is given by which relation is correct? A, B, C, D option is available.
if duty in hectare per cumex, depth in meter, and base period in days. So which option is correct? Option B, 8.64 B by 8.64 B by D. Yes, ma'am. Is it correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Very good. So next question is, the duty is largest at the head of water course, on the field, at the head of main canal, same at all places. Where duty is largest? क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? ड्यूटी का वैल्यू कहाँ पे लार्जेस्ट होगा? फील्ड में ड्यूटी मतलब क्या होता है? At the head of the water course, ma'am. Option A. ड्यूटी को पहले डिफाइन करो सुशीला। डिफाइन ड्यूटी क्या होता है? मेन एरिया होता है जहाँ हम लोग इरिगेटेड करते हैं एनी क्रॉप के लिए, कोई भी क्रॉप के लिए। कोई और अच्छे से बता सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी? ड्यूटी फॉर अ क्रॉप। मैम मतलब कि नंबर ऑफ हेक्टेयर्स दैट कैन बी इरिगेटेड, कुछ कांस्टेंट सप्लाई से वाटर का थ्रू। कौन सा कांस्टेंट सप्लाई का वैल्यू क्या होता है? 1 क्यूमेक 1 मीटर थ्रू आउट 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से। ओके, थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड, है ना? फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप ड्यूटी इज द नंबर ऑफ एरिया, कितना एरिया को हमने इरिगेट किया है थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप इफ वी सप्लाई 1 क्यूमेक्स डिस्चार्ज, है ना? कंटिन्यूअस 1 क्यूमेक्स डिस्चार्ज अगर हम लोग सप्लाई करते हैं, 1 क्यूमेक्स वाटर सप्लाई करते थ्रू आउट वी डेज इज द बेस पीरियड फॉर द क्रॉप, देन कितना लैंड को हम लोग इरिगेट कर पाएंगे, दैट लैंड दैट एरिया इज द ड्यूटी फॉर अ क्रॉप. Okay, so which answer is correct? Duty is largest at the head of water course, on the field, at the head of main canal, at all places. Where Ma'am, it option is? At the head of main canal. Main canal. Any other answer? Duty is largest. फील्ड में शायद हो। फील्ड में मैम या तो फील्ड में होगा या फिर कैनाल में, दोनों में से एक ही, हेड ऑफ द कैनाल या फील्ड। Which one is correct? ऑन द फील्ड। ऑन द फील्ड में मैम ड्यूटी इज लार्जेस्ट ऑन द फील्ड। अगर हम लोग फील्ड से मेजर करते हैं तो हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड होगा उसको ज्यादा इरिगेट करेगा। अगर हम लोग मेन कैनाल से अगर मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएगा वाटर का। मेन कैनाल से कहाँ पे आएगा? माइनर कैनाल में आएगा, है ना? माइनर्स में आएगा, फिर माइनर से वाटर कोर्स में जाएगा। So these are not our land, these are not our irrigation land, that is the part of water distribution, है ना? वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। बट अगर हम लोग फील्ड से मेजरमेंट करते हैं देन irrigation land is large. So that means the if irrigation land is large, area is covered large, then duty is largest on the field. फील्ड में हमारा क्या होगा? ड्यूटी लार्जेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9.
The outlet discharge factor is the head of something is missing here. The outlet discharge factor is the duty at head of. Outlet discharge factor is the duty at the head of main canal, branch canal, watercourse, distributaries. Ma'am, C, Main water canal. course. What? Main canal. Which one is correct? आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? Duty into area. कोई बताओ आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? आउटलेट डिस्चार्ज तो जो कैनाल से वाटर आउटलेट मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटरीज के जरिए जो पानी वापस मतलब आएगा उसको तो आउटलेट कैनाल डिस्चार्ज फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा? नहीं याद आ रहा। ओके, जस्ट थिंक अबाउट दिस। ऑलरेडी पढ़ाया गया है तो एक बार देखो कि क्या होता है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द कोर डेप्थ फॉर राइस इज 190 mm and core period is 14 days. The outlet factor for this will be, again same question is here. Outlet factor is calculated if core depth is given and base period is given, core period is given. So find the outlet factor. Which one is correct? Calculate the value. हम 637 हेक्टेयर मीटर के ऊपर 637. Is it correct? हम ड्यूटी का फॉर्मूला में पुट कर दिया तो क्या आ रहा है आंसर? 637. यस मैम। You can also check from unit. Unit is given hectare meter cube per second. मेरा आंसर 6.37 आ रहा था तो मैम यूनिट में गलती की थी इसलिए 637 आंसर होगा। यस मैम, मेरा कितना आ रहा है? 637 हेक्टेयर। 637.
बाकी लोगों का? ओके, सो मे बी इट करेक्ट, मेरे पास कैलसी नहीं है तो मैं क्रॉस चेक नहीं कर सकती हूँ। तो शायद ये सही होगा जिन लोगों का 637 आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। फॉर सप्लाइंग वाटर टू rabi crop, kharif crop and sugarcane, the channel is designed for a capacity equal to the greater of the water requirement of रवि और खरीफ, रवि और खरीफ और सुगरकेन, रवि एंड सुगरकेन और खरीफ, एंड रवि खरीफ और सुगरकेन। किसके लिए डिजाइन किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11। मैम सी, रवि एंड शुगरकेन और खरीफ एंड शुगरकेन। मैम ऑप्शन सी होगा। कैसे? मैम क्योंकि शुगरकेन पेरेनियल क्रॉप है, मतलब सालों भर उसको पानी चाहिए होता है, तो पेरेनियल क्रॉप है। ओके, सालों भर पानी चाहिए और उसे पानी ज्यादा चाहिए, है ना? सो वी for capacity equal to the greater of water requirement of rabi and sugarcane or kharif and sugarcane. Correct. Next is the question number 12. So the ratio of quantity of water stored in the root zone of the crop to the quantity of water actually delivered in the field is known as. Read the question carefully. The ratio of quantity of water stored in root zone of crop to the quantity of water actually delivered in the field. So this question is related to efficiency. So which type of efficiency? वाटर एप्लीकेशन Which one? मैम बी। वाटर That is एप्लीकेशन। water application efficiency. Okay, so water conveyance क्या होता है? What is water conveyance? मैम इसमें सिर्फ वाटर फील्ड तक पहुंचता है, रिवर से, मतलब मेन केनाल से। तो वाटर कन्वेंस में किस टाइप का लॉसेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं? मैम कन्वेंस लॉसेस। कन्वेंस लॉसेज मतलब क्या? जो पहुंचने वाटर तक में ट्रांसपोर्ट होने पहुंचने से। इवेपोरेशन और मैम इवेपोरेशन लॉस और Okay, correct. Okay. So what is water application? So water application is the water stored in root zone to the quantity of water actually delivered. So next is the water use efficiency. क्या होता है water use efficiency? वाटर जितना यूज हुआ डिवाइडेड बाय जितना वाटर उसमें दिया गया था। yes ma'am, water used to the water amount of water applied. आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, सो वाटर यूज इफिशियंसी क्या होता है?
वाटर यूज्ड बाय मैम वाटर शायद वाटर जो ग्रोथ के लिए यूज होता है मैम, प्लांट जो यूज करता है मैम, वो वाटर यूज्ड एफिशिएंसी होता है। मतलब सॉइल सॉइल में हम लोग वाटर प्रोवाइड करते हैं एक लिमिट तक, और उतना वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं करता है प्लांट। कुछ अमाउंट ऑफ वो क्या बोलते हैं, वाटर सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट तक जाता है मैम, तो उसको हम लोग यूज्ड एफिशिएंसी बोलते हैं। तो वाटर एक्चुअल में ग्रोथ के लिए यूज करता है प्लांट, उसको वाटर यूज्ड एफिशिएंसी बोलते हैं मैम। So how it is calculated? कैसे कैलकुलेट करेंगे यूज एफिशिएंसी? मैम जितना यूज किया प्लांट अपना ग्रोथ के लिए और जितना टोटल अप्लाई किए। That is water used. water used divided by water supplied. Water used divided by water supply. Water stored क्यों नहीं? Water used divided by water stored क्यों नहीं? मैम क्योंकि कुछ इवापोरेट भी तो होगा। क्लास में बताया गया था वाटर यूज हम यूज कर एफिशिएंसी। लेंगे तो स्टोर क्यों करेगा? मैम प्लांट जो वाटर यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए बाई जो जिसको वाटर अप्लाई किए हम, मतलब जैसे जैसे 100 सेंटीमीटर का हम पानी मतलब वाटर दिए, लेकिन प्लांट अपने ग्रोथ के लिए 80 सेंटीमीटर ही यूज किया, तो 80/100 × 100, 80 आ गया मेरा वाटर यूज एफिशिएंसी। और कुछ एरर है तुम लोग के आंसर में?